औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, जैसा कि आप हमारे सामने देख रहे हैं, दो शख्सियात हैं। एक बानी पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्लब पहलवान चौधरी हयात माजरा साहब और साथ हैं ऑर्गेनाइज़र चौधरी सफदर अली मेकन साहब, जो कि साबका चेयरमैन भी हैं। इस वक्त हम गुफ्तगू करेंगे 20वें सालाना पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्लब मेले के हवाले से। पहले हम पूछते हैं चौधरी रियाज माजरा साहब से, पहलवान नाम आपके साथ लगा है, तो आपने कहाँ से अपनी एक्टिविटी शुरू की? खेलों के साथ आपकी वाबस्ती कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक साहब बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯੂਰਪ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, 94 ਯੂਰਪ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਯੂਨਾਨ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। 2001 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3-4 ਸਾਲ ਟੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਲਾ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਯੂਰਪ ਕੱਪ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਯੂਰਪ ਕੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੇਮਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਸਾਲ 20 ਮੇਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ, ਗੇਮਾਂ ਵਾਲੀਬਾਲ, ਕਬੱਡੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਨਾਰਵੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੈਂਡ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ 20 ਮੇਲਾ ਹੈ 2025 ਦਾ। 2-3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਖਿਲਾੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ने खिलाड़ी तकरीबन 5 खिलाड़ी ओपन है पूरे यूरोप में। फरमान साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस दफ़ा जो है मेले में कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं, कौन कौन सी गेमें हैं इसमें शामिल है? इसमें वालीबाल है, वालीबाल, कबड्डी, उसके बाद फुटबॉल है, क्रिकेट है। लेकिन जो वालीबाल है वो दूसरे मेलों से हट के है, क्योंकि दूसरे मेलों से हट के इस तरह है कि दूसरे मेलों में ओपन टूर्नामेंट होता है। उसमें 4 टीमें हो गई, 5 टीमें हो गई, या लोकल छोटियां टीमां लैद होंगी। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮੇਲੇ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਾਲੀਬਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਖਿਲਾੜੀ ਓਪਨ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 2 ਖਿਲਾੜੀ ਓਪਨ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35 ਟੀਮਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ 5-6 ਟੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੂਰੇ ਇਟਲੀ 'ਚੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰ 20 ਦੇ 2-3 ਟੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੰਡਰ 20 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿस्तान स्पोर्ट्स क्लब इंशाल्लाह सिर्फ स्पोर्ट्स है। अच्छा, और क्रिकेट के कितनी टीमें हैं? क्रिकेट की 10 से 12 टीमें होंगी इंशाल्लाह। पूरे इटली से 10 से 12 टीमें। मुनफरिद क्या करने जा रहे हैं? मुनफरिद करने जा रहे हैं कि जो +40 का एक टूर्नामेंट होगा, शो मैच होगा इंडिया और पाकिस्तान का। ये किसका होगा? एक पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्लब की टीम होगी +40 का। +40 का मतलब यानी कि 40 साल से ज़्यादा उम्र के होंगे, जो पुराने खिलाड़ी हैं इटली में। अच्छा, इटली में जो पुराने खिलाड़ी। अच्छा, मैंने सुना कोई फुटबॉल का भी मैच आप करवाने जा रहे हैं? फुटबॉल का मैच हो रहा है। फुटबॉल का जो है वो बच्चों का मैच हो रहा है। यानी एक इटालियन टीम होगी, एक पाकिस्तानी खिलाड़ी लड़के हैं जो नौजवान। हमारी कोशिश है कि जो फुटबॉल खेलता है वो फुटबॉल खेले, जो कबड्डी खेलना चाहता है वो कबड्डी खेले। लेकिन बच्चों को हर तरह का शौक पूरा होना चाहिए उनका, और वो स्पोर्ट्स की तरफ आए। नहीं, यानी कि आप बता रहे हैं कि कबड्डी भी है, क्रिकेट भी है, वॉलीबॉल भी है, फुटबॉल भी है,
ان 4 गेमों के अलावा और कौन सी गेम है? उसके बाद अलावा बच्चों की दौड़ें होंगी, बच्चों की कुश्तियाँ होंगी। उसके बाद अगर हमें खिलाड़ी मिल जाते हैं तो वो जोर जमाई, बाजू की जो जोर जमाई होती है वो भी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो क्रिकेट की टीमें हैं ये कितनी आपने बताई हैं? ये 10 से 12 होगी। वॉलीबॉल की? वॉलीबॉल की 30 से 35 होगी। टोटल बड़ों की छोटों की सारी मिला के? ये सारे मिक्स हैं। और कबड्डी की? कबड्डी की 10 टीमें होंगी। 10 जो 2 टीमें होंगी प्लस 40 की, 3 टीमें अंडर 20 की, और दूसरी जो टीम है वो ओपन होगी। अच्छा, पहलवान साहब, सुनने में आ रहा है कि चूँकि अगस्त है और अगस्त की छुट्टियों में काफ़ी लोग जो है वो अपने मुल्क चले जाते हैं या आउटिंग के लिए बाहर चले जाते हैं, दूसरे ममालिक में चले जाते हैं, उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए 14 अगस्त छुट्टियों में ही होता है, और 14 अगस्त का ये 14 अगस्त का मेला हमारी कोशिश होती है कि जो 14 अगस्त के करीब हफ्ता त्यौहार आता है उसको मेला कराया जाए। अगर पहले आ जाए तो बाद में हो। उसके बाद परमेश्वर को भी ज़्यादा अपना इजाज़तनामा भी चाहिए, ग्राउंड का सारे मामलात करने होते हैं, क्योंकि ये 14 अगस्त के वाले से स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। इस साल 20वां मेला है इंशाल्लाह हर इस्मार को। लेकिन अगर अगस्त की आप बात कर रहे हैं मलिक साहब, अगस्त में अगर छुट्टियों में लोग जाते हैं तो इधर भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो फैक्ट्री में कामों से फारग होते हैं, इसलिए तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपके मुताबिक इस जो पिछला मेला था उसके और इस मेले में जो तादाद है पाकिस्तानी कम्युनिटी की वो कितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा होगी? वो इंशाल्लाह 20 से 25% ज़्यादा होगी। 20 से 25% ज़्यादा होगी। वो इसलिए होगी कि उसी ग्राउंड में हो रहा है जो साल में पिछले साल था, और सिक्योरिटी का किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। देखें, कोई भी कमेटी जड़ी है वो नहीं चाहती कि मेले किसी का भी मेला खराब हो। हमें पाकिस्तान, हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, हमें तमाम पाकिस्तानियों को हर एक मेले की कोशिश करनी चाहिए कि सारे मेले कामयाब होने चाहिए, और उसके बाद कि हम सब को ये साबित करना चाहिए कि हम एक आज़ाद कौम है। 14 अगस्त हम आज़ादी के साथ मनाते हैं, और ये जो गेमें होती हैं, स्पोर्ट्स होता है ना, इससे बहुत ज़्यादा मैसेज जो है वो इटालियन कम्युनिटी को जाता है कि हम अमन पसंद लोग हैं, गेमें करने वाले लोग हैं। जी बिल्कुल। चौधरी साहब, आपसे एक सवाल है कि जैसे कि पहलवान साहब ने कहा कि इटालियन लोग जो है इम्प्रेस होते हैं इन चीज़ों से, इस मेले में इटालियंस की तादाद देखने में मिलेगी या ऑफिशियल्स ज़ाहिर छुट्टियाँ होती हैं तो वो आगे पीछे निकल जाएंगे? जी मलिक साहब, जिस तरह भाई बता रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी पे वर्क कर रहे हैं। आपने सवाल किया कि अगस्त की छुट्टियाँ होंगी, और इससे इंशाल्लाह हमको फ़ायदा होगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो यहाँ लोकल होंगे और वो बाहर सफ़र नहीं करें, उनकी इंटरटेनमेंट का बंदोबस्त हो जाएगा। प्लस आपने इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इस बार एक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इटालियन कुछ हमारी कमिटमेंट हो गई है कि इटालियन क्लब जो है वो हमारे बच्चों के साथ आके फुटबॉल खेले, ताकि हमारे बच्चे जो है उनको भी इंकरेज हो, उनको भी हौसला मिले कि यहाँ पे हमें कोई ना कोई बंदा है जो ऑन कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सियासत में तनवीर कदर भाई भी हमारे साथ हैं, और इंशाल्लाह कमूना और कसूरा और सान फिलिपो के साथ मिलकर एक थोड़ा छोटा सा इवेंट हम रख रहे हैं, या एतवार को या हफ्ते को। अभी ऑफिशियल के साथ बात चल रही है, तो उसमें थोड़ा सी गैदरिंग इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस मेले में आपको तो इटालियन कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्लब ब्रेशिया के बानी और साबका चेयरमैन। हमने इनसे गुफ्तगू की, थोड़ी तफसील लेने की कोशिश की कि मेला कैसे होने जा रहा है और इस दफ़ा जो क्या चीज़ नई है जो इस मेले में होगी। 20वां सालाना मेला पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्लब ब्रेशिया के ज़ेर एहतमाम होने जा रहा है। वही ग्राउंड है पिछली दफ़ा रग्बी का, और वही इंतज़ामिया है। सदारत थोड़ी सी चेंज हुई है। मलक गुलजार साहब जो हैं वो इस वक्त सदर हैं, और जनरल सेक्रेटरी जो है वो सजाद महर हैं, जो कि साबका टन्योर की बजाय इस दफ़ा नई टीम नई तरीके से आगे बढ़ रही है। तो देखते हैं कि इस दफ़ा मेला किस जानब जाता है। मलक ज़ाहिद मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।